سر ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردانہ کارروائیاں بڑھ گئی ہیں. آج بھی جوان شہید ہوئے ہیں. کل بھی بنو اور زیارت میں حملے ہوئے تھے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا ذکر کیا اور کور کمانڈرز کانفرنس میں آپریشن غضب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کا عزم بھی دہرایا گیا ہے. آپ اسلامیہ کی زبان کو کتنا سنجیدہ اور مختلف دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کابل حکومت کو آخری وارننگ ہے کہ اب بات بیانات سے آگے نکل کر سرحد پار ایکشن میں بدلنے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سرحد پار ایکشن تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا. ہم نے تو آرٹیکل 51 کے تحت جو کارروائیاں جاری تھیں، جو رمضان شریف سے جاری ہیں، وہ تو ہم نے کبھی بھی بند نہیں کی. اور ہم ابھی تک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں. اور کور کمانڈرز کانفرنس جو 276ویں ہوئی، اس کے اندر بھی وضاحت سے اس کے اوپر بات کی گئی افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ افغانستان سے ہو یا کہیں اور سے ہو، وہ بی ایل اے ہو یا کوئی اور دہشت گرد گروپ ہو، تمام کے تمام پہ پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. اب انڈیا کا اگر ہاتھ ہے تو آپ دیکھیں کب تک آپ ایسے ہی بات کرتے رہیں گے. ابھی عمل کرنا پڑے گا. جہاں سے بنیادی طور پہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کا تیل جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے اس کے چیمبر سے. اب ہم چیمبر کے جو جہاں سے بنیاد ہے چیمبر سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم باقی ہر جگہ کے اوپر اس کی لیک بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیمبر تو لیک کرتا رہے گا. تو اصل چیز ہے بھارت. دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت جنگ ہوئی تو انہوں نے جہاز اڑائے، ہم نے جہازوں کا جواب جہاز سے دیا. انہوں نے میزائل پھینکے، ہم نے میزائلوں کا میزائل سے جواب دیا. انہوں نے ڈرون پھینکے، ہم نے ڈرون کا ڈرون سے جواب دیا. اب جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم کب تک صرف جو ہے وہ اچھے بچے بنے رہیں گے؟ یہ وہ باتیں ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، افواج پاکستان کی کارروائیاں یقیناً پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں کہ کس طریقے سے کمیٹڈ ہیں. اٹ از ناٹ ایزی شجیہ صاحبہ کہ وہ جا کے تقریباً 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ایک سال میں کریں. دنیا میں کوئی ملک مجھے نظر نہیں آتا جس نے اتنی بڑی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور اسٹرینگولیشن آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہوں. اور ہماری روزانہ جانیں جا رہی ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم شہادتوں سے نہیں گھبراتے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بھارت جو ہے جس انداز کے اندر، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا تھا، آج جو ہے امریکی محکمہ انصاف تک نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب بھارت کے اندر جو بیٹھے ہوئے لارنس بوشانی گروپ ہے، اس کے جو دہشت گرد جس طریقے سے انہوں نے آپریشن ہارڈ بال شروع کیا، یہ تمام آخر پاکستان کی ہی بات کو سامنے آ رہی ہے نا. اب چاہے وہ بھارت افغانستان سے چلے یا کچھ کرے، ابھی بھارت کو میرے خیال میں نکیل ڈالنے کا وقت ہے. کبھی وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان میں کلبھوشن یادو کو بھجواتا ہے. وہ مقدمہ بھی ابھی تک جو ہے وہ لٹک رہا ہے انٹرنیشنل عدالت کے اندر. کوئی اس کا جو ہے وہ 11 سال غالباً ہو گئے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو آخر ہمیں دیکھیں نا، ہم بندے ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ابھی پاکستان کو بھر کر سوچنا پڑے گا، پاکستان کو فیصلہ لینا پڑے گا. لیکن ہاؤ ایور ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریشر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے عزم کا اظہار بھی کیا. لیکن جو زیارت ہے، دیکھیں زیارت وہ علاقہ ہے، یہ پشتون بیلٹ کا علاقہ ہے، بڑا پرامن، بڑا اچھا. وہاں میں خود جا کے کتنی دفعہ جب جا کے رہتا رہا ہوں. لیکن اب صورتحال پر فرق ہو گئی ہے. ہر جگہ پاک فوج نہیں ہے. کئی جگہ کے اوپر وہاں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے. پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی صوبائی حکومت نے، وہ کدھر کی ہے انہوں نے. صوبائی حکومت دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے وہ بلوچستان کی ہو. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن نہیں ہو رہا. یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کچھ اسٹرانگ میئرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. بلوچستان کے اندر جو خاص طور پہ جو چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون قوم کٹھی ہو گئی ہے دہشت گردی کے اندر. میں پوری قوم کی بات نہیں کروں گا، کچھ ان کے جو دھڑے ہیں وہ. اب آپ یہ دیکھیں، یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر وہاں آدمی بلوچستان کے اندر صرف پشتون بیلٹ کے اندر 200 کمانڈر بن چکے ہیں.
हैं। 200 से ज्यादा जो सिविलियन लोग हैं, अपने आप को उन्होंने कमांडर नाम किया, और अस्कर जो अफगानिस्तान के थे, यानी कि जो अफगानिस्तान के अंदर जब वहाँ अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो उस टाइम पे वो जो पुलिस के जो स्पेशल, जिनको आप एलीट फोर्स कह लें, अस्कर कहलाते थे, वो अस्कर जो है वो क्योंकि वहां से भागे, उनको जो है वो यहाँ मौका दिया गया, और वो आके यहाँ लोगों के जाति जो वहाँ के बड़े बड़े नामवर लोग हैं, उनके वो गार्ड बन गए प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर, और वो वहाँ अब खड़े में। अब ये 200 ग्रुप हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते भी हैं। अभी जो ड्रोन हमला हुआ था वो भी इन्हीं के ऊपर हुआ था असल में, लेकिन इसी तरह से बलोच बेल्ट के अंदर भी लोग मौजूद हैं। हकीकत यह है कि जो पुलिस है, जो वहाँ दीगर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो नजर नहीं आता। अफवाज पाकिस्तान कब तक कुर्बानियां देगी, कब तक ये सिलसिला चलाएगी, और कब तक इन जो सियासतदान हैं, इनके हवाले से जो काम इन्होंने करने हैं वो तो करते नहीं नजर आते। इसी वजह से बलूचिस्तान के हालात और वाकयात के ऊपर आपको वहाँ की लीडरशिप टीवी इंटरव्यूज के ऊपर नजर नहीं आती, क्योंकि वो बीएलए के खिलाफ जबान खोलने से डरते हैं, वो मजीद ब्रिगेड से डरते हैं, और कहीं ना कहीं जो तासुर ये देते हैं कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, क्यों भाई, सारे पैसे वैसे बनाने में आप लोग लगे हुए हैं और कुर्बानियां देने में फौज है। आप किधर हैं, आपका किरदार किधर है? आपने सूबे की बद इंतजामी जो अरूज के ऊपर है, आप ये देख लें कि सूबे के अंदर बद इंतजामी है, लोग सड़कों के ऊपर निकल नहीं सकते। अभी खुलेआम जो है हन्ना और उड़क जैसी जगह के ऊपर दहशतगर्द फिर रहे हैं, जिधर मैंने अपनी जिंदगी का बचपन गुजारा है, जिधर मैंने अभी अपने वहां जब भी जाता था तो वहां पिकनिक के लिए हम जाते थे, और लोग आते थे वहां, वह खड्डा कबाब करते थे, कोई वैसे खाना पीना करते थे, बड़ा खूबसूरत इलाका था। बलोच बेल्ट में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन पश्तून बेल्ट में प्रॉब्लम नहीं थी। आज पश्तून बेल्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये फैसला करना पड़ेगा। आप देखिए, यारों का इलाका हो, पशीन का इलाका हो, चमन का इलाका हो, आपका जो है फोर्ट संडेमन, जिसको अब योब का नाम दिया जाता है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, ये तमाम इलाके जो है वो आखिर क्यों दहशतगर्दी यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और बलोच आके जब यहाँ हमला करते हैं, ये कोई वहाँ 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ आप ये कहें कि जी वो 5 स्टार होटल थे, वहां से लोग वहां रहते हैं, किसी को पता नहीं है। यहाँ तो बलोच अगर 10 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो तो लोग पहचान जाते हैं कि जी ये बलोच है, और जो पश्तून है वो बलोच इलाकों में पहचाने जाते हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। कब तक हम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की बात करेंगे? नाउ इट इज आवर टाइम दैट वी मस्ट रिस्पॉन्ड इन अ वे, इन अ बिफिटिंग वे। बिल्कुल सही। और सर ये जो 276 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर या झूठे बयानियों की मदद से भी इंतशार फैलाना चाहता है, जिसे सख्ती से कुचला जाएगा। अब दाखिली महाज पर सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम के दरमियान एतमाद के फुकदान को कम करने के लिए ये पोजीशन कितनी जरूरी है? देखिए, ये तो जरूरी है ना, एक जो सियासी अमल है वो तो अपनी जगह जारी रहना चाहिए, और सियासी अमल को जारी रखने के लिए आप काइनेटिक जो ऑपरेशन है वो तो अपनी जगह चल ही रहे हैं। असल मसला ये है कि जो अवाम के अंदर बदएतमादी हो गई। शजिया साहिबा, मैं हर साल बलूचिस्तान 2 से 3 दफा बाय रोड जाया करता था, दनासर के इलाके में, जहाँ से ये फिर आगे मुगल का कोट वगैरह आता है, फिर वहां से आप योब जाते हैं, योब से फिर आप आगे ज़ियारत क्रॉसिंग, और इस तरह से आपका ये सारा, ये तो वो इलाके थे जहां मैं खुद जाता था। लेकिन दनासर जिधर अभी ये बस का भी हादसा हो गया, अफसोसनाक, 40 लोग बेचारे जो है वो हलाक हो गए उधर, ये तमाम इलाका तो पुरअमन इलाका था, यहाँ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बलोच बेल्ट के अंदर भी कभी कोई, लेकिन अब जब मस्तूम से आप ऑनवर्ड आप चलते हैं, खारान की तरफ, वहां नौशकी की तरफ, आप इधर खुदार की तरफ, और आगे जाके आप जो है वड की तरफ, ये तमाम इलाका जो है ये तो अब नो गो एरिया हो चुका है। खुलेआम दहशतगर्द जो है वो घूमते हैं, वो वारदातें करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। अफवाज पाकिस्तान एक टोटल कोर वहां मौजूद है, पूरा बलूचिस्तान 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, एक कोर टोटल वहां मौजूद है।
क्या जी कुछ कर सकती है वो, क्या नहीं कर रही, कौन सी कुर्बानी है जो वो नहीं दे रही। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें वक्त आ गया है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा भारत को कि ठीक है, अगर तुमने यही सिलसिला रखा। फिर दूसरा इसमें सवाल ये भी है कि अमेरिका आखिर अपना असला अफगानिस्तान में छोड़ा गया कब वापस लेके जाएगा। अमेरिका जो $40 मिलियन हफ्तावार अफगान हुकूमत को दे रहा है, जहां 24 दहशतगर्द तंजीमें हम्म बैठी हुई हैं यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, उनको आप क्यों पैसा दे रहे हैं, ये भी सवाल है ना। फिर अमेरिका जो जिसने खुद बीएलए के ऊपर, मजीद ब्रिगेड के ऊपर दहशतगर्द होने का जो है वो मोहर जब्त की थी, दहशतगर्द करार दिया था ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया के साथ। जी आज जब पाकिस्तान आर्टिकल 1267 के जरिए जाता है यूनाइटेड नेशन में, उनके ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराने के लिए, उनके अकाउंट्स बंद कराने के लिए, उनके जो है वो ट्रैवलिंग को जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो आज पाकिस्तान क्यों हमसे वो अमेरिका जो है वो मजीद यूनाइटेड नेशन में सबूत शवाहिद मांगता है। भाई जब आपने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था तो तो फिर आपने क्लियर क्या है बात बगैर बिल्कुल सबूत और शवाहिद के किया था। हम्म लगता यह है कि अमेरिका को जितनी पाकिस्तान की जरूरत थी वो उसको हासिल हो गई है और अब जो है वो उनके एक सोच के अंदर तब्दीली आ गई है। हाउएवर मैं ये समझता हूं कि भारत के लिए भी हम्म अमेरिका की तब्दीली बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड जिसको कहा जाता था, अब वो इंडो पैसिफिक की जगह सिर्फ वापस उसका नाम पैसिफिक कमांड कर दिया गया, जिससे नजर ये आ रहा है कि अमेरिका इस खित्ते में हर मुल्क को अपने हिसाब से, अपने जोग्राफिए के हिसाब से, अपनी उसकी जो तरजीहात हैं उसके हम्म हवाले से वो देख रहा है। इंडिया का किरदार मैं समझ रहा हूँ ये कम हो रहा है, जो आज वजारत उनके इंसाफ की जानिब से आया है ये भी बड़ा अहम है। भारत को ऐसा नहीं है कि भारत को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन हम्म उसमें एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बात की गई है। ये सही शजिया बीबी ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। उसके अंदर अगर एक्सपोर्ट की बात की गई है, जिसके अंदर नजर सिंह के कत्ल के हवाले से बताया गया और बकायदा 24 अरेस्ट हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा के अंदर, और उसको भारत से जोड़ा गया है बड़ा खुले आम के जेल के अंदर बैठ के वो पूरा गैंग चला रहा है। और ये वही गैंग है, बिश्नोई गैंग, जिसको आज से 2 से 3 साल पहले तक जो उनका सबसे बड़ा भारत का तर्जुमान, जो उनकी फौज का तर्जुमान है, मेजर गौरव आर्या, वो ये कहता रहा कि बिश्नोई गैंग के जरिए पाकिस्तान में किरदार अदा करना हम्म चाहिए। आज वही बिश्नोई गैंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आज उसको अमेरिका जो है आड़े हाथों ले रहा है। दिस इज द टाइम दैट पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो रहा है कि पाकिस्तान हमेशा जो बात कर रहा था वो सच थी। भारत हम्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी भारत को आपको टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डलवाना पड़ेगा, एफएटीएफ की FATF ब्लैक में लिस्ट में बिल्कुल डालना सही पड़ेगा, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म जो है वो बताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें फील्ड मार्शल ने तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी तेजी से अमल करने की हिदायत की है। जंग के बदलते हुए किरदार के तनाजुर में जब खित्ता एक तरफ ईरान अमेरिका जंग और दूसरी तरफ अफगान सरहद पर कशीदगी की लपेट में है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पाकिस्तान के दफा को कैसे महफूज बनाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो इस वजह से ज़रूरी है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान भारत जंग से भी सीखा है और हमने अमेरिका और ईरान जंग से भी देखा है, जहां मुज़ैक फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने मल्टीपल, हर सूबे के अंदर एक अपनी आर्मी थी जो लड़ रही थी, और वन ऑफ द रीजन कि उसने बीच बचाव जो हो गया ईरान का वो उस वजह से हुआ। इसलिए अब हालांकि लीडरशिप शहीद हो चुकी थी। पाकिस्तान जो मेरे ख्याल में जो भावलपुर में गए थे, 31 कोर का दौरा किया था साल के शुरू के अंदर आर्मी चीफ ने, उस टाइम पे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियॉरिटी थी उसकी बात की थी और मल्टी डोमेन जो अब ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनके हवाले से बात की गई थी। मेरे ख्याल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि हमें हर सतह के ऊपर मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमने अपने आप को तब्दील करना है हालात और वाकयात और बदलती हुई जंगी सूरत हाल और हिकमत
عملی کو سامنے رکھتے ہوئے AI کا استعمال کرتے ہوئے دیگر جو میرے خیال میں اہم چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹریننگ کرنی ہے مضبوط. اور پاکستان کی تمام فارمیشن جو الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمارے کورز ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے اندر تربیت کے عمل کو بہت تیزی سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور تربیت تو ان کی صحیح. بہت اعلیٰ معیار پہ ہو رہی ہے. اور یہی چیز جو ہے کور کمانڈرز 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ہمارے کمانڈر ڈیفینس فورسز نے CDF جو ہیں جنرل آصف منیر صاحب، انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. آئی تھنک کہ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو.